your syllabus, in your syllabus, the topics which are there, that are 5, जो topics हैं वो total आपके जो है 5 हैं: न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, then after the vitamin, and one more is there, that is enzyme, but enzyme we will not discuss here, that is already over. So carbohydrate हमारा complete हो गया, protein complete हो गया. Now if you will see here, then see in this diagram what is the monomer of protein, what is the monomer of carbohydrate, and what is the monomer of nucleic acid जो हमको मिलेगा. So enzyme is over, so हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. ये enzyme I had given here, but we will not discuss. मे बी अगर आपको वहाँ नहीं पढ़े हो, वहाँ नहीं मिला हो, तो यहाँ पे we will start with the vitamins. So what are vitamins? Vital amines, vitamins. So vitamins कहते हैं, कहीं पे vitamins प्रोनाउंस करते हैं, तो vitamins और vitamins. So what are vitamins? It's a definition. It is the smallest part of this chapter. बहुत छोटा सा पार्ट है. Vitamins are complex organic compounds or molecules can't be produced by the body. ठीक है, and must be supplied in small amount in our diet. पहला इंफॉर्मेशन याद कर लीजिए कि विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. दूसरा इंफॉर्मेशन, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ये हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. एंड दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट. और ये हमारे बॉडी में कहाँ से आते हैं? डाइट के थ्रू आते हैं. They are required in very small amount, but the most important information is here कि they are very essential for metabolic reaction which required for normal growth and maintenance of the body. Means we require vitamin. जैसे आप कहते हो आयोडीन, जैसे हम एक एग्जाम्पल है, आयोडीन बहुत थोड़ा सा कहा जाता है, पूरे लाइफ में आपको 1 टीस्पून चाहिए होता है. So we required a vitamin in microgram, in milligram, but they are very essential. That's why इनका नाम लिखा है vital amines, vitamins. Vitamins means they are required for vital. Vital means living organism होता है. So they are required in very small amount, but they are very much essential for the normal growth and maintenance of the body, because they are essential for metabolic reaction. जो हम खाते पीते हैं उन सब एनर्जी, प्रोटीन, ये सब हेल्प करता है प्रोवाइड करने में. So these are very important, very small but very important. We will have the lack of vitamin. किसी भी विटामिन की कमी होगी, then we will, ठीक है, we will फेस सम डिजीजेस. तब हमको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसका मतलब ये नहीं कि चलो जैसे आप कहते हो 20 रुपीज़ का है 1 रुपीज़ नहीं दिए चल जाएगा. सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर मिलीग्राम, बट दैट मिलीग्राम इज वेरी इसेंशियल. अगर वो मिलीग्राम भी नहीं मिला, देन वी विल फेस एनी प्रॉब्लम. तब हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी. नाउ विटामिन्स मीन्स क्लासिफिकेशन. विटामिन्स आर क्लासिफाइड on the basis of their solubility. पहला तो क्लासिफिकेशन ए बी सी डी ये सब है. दूसरा यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ solubility. So vitamins are classified on the basis of solubility. So solubility is to, that is soluble in water or not soluble. So पहले तो ये देखा गया कि they are water soluble or not. फिर देखा गया कि those which are not water, some of them are water soluble, some others are not water soluble. So those which are insoluble in water, they are soluble in any other liquid, any other substances. So scientists have find they are soluble in fat. So on this basis vitamins जो होते हैं वो दो टाइप के हो गए, water soluble vitamin and fat soluble vitamin. In another way, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, water soluble vitamin
सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैट इनसॉल्युबल विटामिन। जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो फैट में इनसॉल्युबल होंगे। एंड सेकेंड फैट सॉल्युबल विटामिन, सो दिस कैन बी कम इन द वे दैट वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। सो क्वेश्चन आपका 2 हो गया, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, एंड फैट सॉल्युबल एंड फैट इनसॉल्युबल। दोनों याद रखिएगा, जो वाटर सॉल्युबल है फैट इनसॉल्युबल हुए, जो फैट सॉल्युबल है दे आर वाटर इनसॉल्युबल। सो विटामिन्स आर जो होते हैं वो ए बी सी डी ई के, ये 6 टाइप के आपको इंफॉर्मेशन होगा, मे बी 6-7 से ए बी सी डी ई के। Out of these 6, the 2 vitamins, that is B and C, these 2 are water soluble. Vitamin B and C are water soluble. Rest 4 vitamins A, D, E, K, that are water insoluble, means fat soluble vitamin. So maybe question ये पूछ सकता है, which one of the following is fat soluble vitamin? Then you will say A, D, E, K. Which one of the vitamin A is fat insoluble vitamin? केवल फैट देख करके don't judge the question कि फैट देख ले तो फैट soluble ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। फैट soluble की जगह फैट insoluble पूछ सकता है, that means water soluble। और वाटर soluble की जगह वाटर insoluble पूछ सकता है, that is fat soluble। So now next आपका कह रहा है another information, the most important, ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या, see these 2 line, very important information, and this question is also in your NCERT book. All the water soluble vitamins are we required in regular supply diet। जितने भी वाटर soluble विटामिन है यानी विटामिन बी और सी, we require these vitamin in our regular diet। हमको ये vitamins हमारे regular diet में चाहिए होते हैं, means we require the continuous supply of regular supply of these vitamins। reason why, क्यों हमको regular चाहिए, because it is written here these are water soluble, so they are dissolved in the water part of our blood। and आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और बॉडी से एक्सक्रीट होती है तो वाटर के थ्रू एक्सक्रीट होती है यूरिन के फॉर्म में। सो दीज आर वाटर सॉल्युबल, सो दे हैव कैपेसिटी टू यूटिलाइज इन द बॉडी थ्रू मिक्स इनटू ब्लड एंड दे आर रीच टू देयर डेस्टिनेशन। बट इफ दे विल बी नॉट यूटिलाइज देयर, अगर वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, सपोज वो यूटिलाइज नहीं होते हैं या you have the amount of that vitamin, so they will be not stay there, they will be not store any body, means not store in any part of our body। ये हमारे बॉडी में कहीं पे स्टोर नहीं होते हैं। आपने जो भी डाइट के थ्रू लिया, जैसे आपको कहा गया कि आपको विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी आपको चाहिए 5 ग्राम, आपने ले लिया 10 ग्राम, कि हमको कभी कमी ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू हैव टेकन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, हमारे बॉडी से यूरिन के साथ निकल जाता है। दैट्स वाई जिस समय हमको विटामिन चाहिए उस समय हमारे डाइट में वो विटामिन होना चाहिए, मीन्स वी रिक्वायर्ड दीज वाटर सॉल्युबल विटामिन इन रेगुलर सप्लाई। आज के लिए जितना चाहिए उतना ही हमारे डाइट में जाएगा, एक्स्ट्रा अगर हम ले भी लेते हैं तो दैट विल बी नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, दैट विल बी रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एक विटामिन केवल एक्सक्रीट नहीं होता है यूरिन में, वो है विटामिन B12। सो 2-3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन देखिए, why water soluble vitamins are required a regular supply in our diet, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, why this question is in your NCERT, why vitamin C is required in regular supply in our diet। विटामिन सी की रेगुलर सप्लाई क्यों चाहिए होती है, और विटामिन B1, B2, B6 की रेगुलर सप्लाई क्यों चाहिए होती है। मे बी द क्वेश्चन विल बी देयर कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which one vitamin is वाटर सॉल्युबल एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी। कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो वाटर सॉल्युबल और स्टोर केवल ये है। सो
क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन विटामिन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेगुलर सप्लाई इन आवर डाइट। इन्हीं में से ऑप्शन दिया है, ये नहीं किया है, ये तो हमारे डाइट में रेगुलर सप्लाई में नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहिए B1 B2 B6 B12, तो आंसर विल बी B12। B12 को एक बार हम रेगुलर सप्लाई में नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन बाकी रेगुलर सप्लाई में चाहिए हमको। नेक्स्ट, विच ऑफ द विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विच ऑफ द विटामिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, विच ऑफ द विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन। नाउ fat soluble vitamins are soluble in fat and oil. They are stored, where they are stored, in the tissues and bones, ठीक है, के टिश्यू और इन सब के टिश्यूज में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर इन एडिपोज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर इन लीवर, ठीक है। सो ADEK, ये चारों हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। तो फैट सॉल्युबल कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, बट वाटर सॉल्युबल इज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी एक्सेप्ट वन। सो दैट्स व्हाई water soluble vitamins are required regular supply in our diet. Now the classification of vitamin, ठीक है, that is deficiency of more than one or deficiency of just one vitamin। तो इस बेसिस पे दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दैट इज ए विटामिनोसिस और हाइपर विटामिनोसिस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट वन इज हियर, दिस वन इज स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज विटामिन H। अभी तक आप जान रहे थे ABCDEK, यहाँ पे एक नाम दिया विटामिन S, ठीक है। इट इज नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन फैट, ये आपको याद रखना, विटामिन H। नाउ another is this page I think I had sent to all of you, that is the different vitamins, their sources and the disease caused by their deficiency। vitamins, उनके sources और उनसे होने वाले deficiencies, ये आपको अपने से याद करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, इससे कौन सी डिजीज होती है। विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं, इससे कौन सी डिजीज होती है। विटामिन B2 के सोर्सेज क्या है, इससे कौन सी डिजीज होती है। विटामिन B6 के सोर्सेज क्या है, इससे कौन सी डिजीज होती है। और मे बी द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस साइड कि कन्वर्जन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कन्वर्जन किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। पर्सीनियस एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। एंड विच आई हैड सेंट विथ पॉलीमर, पॉलीमर के बाद मैंने ये दिया था शायद बायोमॉलिक्यूल का, एक ही आपको दिया ही है विटामिन का, तो उसमें आई हैड गिवन द सम नेम्स ऑफ दीज विटामिन, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द विटामिन। आप उस पर नेट पे सर्च कर लीजिए, या मेरा जो PDF होगा उस PDF को आपको जो नोट्स बनाने के लिए दिया गया था उस PDF पेज पे देख लीजिए, विटामिन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। थायरो क्या नाम है, साइनोकोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, ये सब दिया हुआ है। सो यू नीड टू राइट दिस इन योर नोट्स। और इसमें बस 2 ही 3 चीज़ पूछेगा, आइदर name of the vitamin by the name of the disease, name of the disease by the name of the vitamin, or by the disease the sources by which the disease can be the problem can be solved, or the sources of vitamins। यही 3-4 क्वेश्चन पूछता है। सो यू नीड टू कौन सी डिजीज होती है, एंड ओनली दीज आर गिवन इन योर NCERT। सबसे ज़्यादा यही देता है, delay in blood clotting, loss of hair, then after Persinius anemia, convulsion, then after night blindness, beriberi, स्कर्वी तो आपको पता ही होगा, ये आपका इतना है ना। विटामिन में बस इतना ही था, ध्यान से देखिए, विटामिन
डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन केवल सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ये आपके में नहीं है. एंड देन आफ्टर द डिजीज caused by the deficiency of vitamin and the name of vitamin. Now next, nucleic acid. This is the last part of this chapter, nucleic acid. Screen and voice are clear? Anyone please unmute and tell me. Yes, Yes, sir. sir, clear. This time the voice, that extra surrounding voice is coming, or the voice is clear? No, Shivans sir, or this someone would time have was told what that is day. better. Okay. Okay, thank you. So now nucleic acid, remember, again I want to inform you that now we are proceeding to complete this chapter. Maybe tomorrow or day after tomorrow this chapter will be over. So carbohydrate is over, protein is over, vitamin. Vitamin is the smallest part of this chapter, that is of 1 page or 2 page, that is over. Now I'm going to discuss the last part of this chapter, that is nucleic acid. Nucleic acid, this is slightly related with बायो, लेकिन जितना बायो से रिलेटेड है दैट पार्ट यू नो फ्रॉम क्लास 10th. So nucleic acid, nucleic, so an acid which is found in nucleus. ये एक एसिड कैरेक्टर वाला, एसिडिक कैरेक्टर वाला कंपोनेंट होता है जो हमारे न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है. ठीक है, सी हियर, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स. Now another, nucleic acids are called genetic material, that you know. कुछ वर्ड्स आप सब जानते हैं क्लास 10 के, कुछ नया वर्ड नहीं मिलेगा. जेनेटिक मटेरियल मीन्स विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अनदर इंफॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर. पहले तो आप ये याद रखिए, रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर नहीं था. कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड, तीनों टाइप के थे. नेक्स्ट था अनदर, न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो अ पॉलीमर. So nucleic acid is a polymer, means a chain of monomer. The monomer of protein was called amino acid. प्रोटीन के मोनोमर को बताए थे एमिनो एसिड कहते हैं. मीन्स व्हेन प्रोटीन विल बी undergo during the breaking of bond, and that will form amino acid. The smallest basic part of protein is amino acid. And here nucleic acid is made of nucleotide. So remember the two word, nucleic acid, nucleotide. Nucleic acid is the polymer chain, our main component, and it is a polymer called nucleotide. So this is the monomer of nucleic acid. That's why in this diagram it is showing nucleotide monomer. एक मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोमर को मोनोसेक्राइड कहते हैं. प्रोटीन में एक मोनोमर को एमिनो एसिड कहते हैं. सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर, nucleic acid is the polymer. Carbohydrate, all the carbohydrate are not polymer, only the polysaccharides are polymer. So now I think this is clear कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. सो नाउ सी, वी विल फर्स्ट डिस्कस द न्यूक्लियोटाइड. अब हम इतना जान गए हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का. तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है. जैसे प्रोटीन पढ़ रहे थे, प्रोटीन के कंपोनेंट पता चले कि प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड था, तो पहले एमिनो एसिड के बारे में पढ़े. सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लिक एसिड. अब हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज इट्स मोनोमर. सो न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट. न्यूक्लियोसाइड 3 कंपोनेंट का बना. पेंटोज सुगर, रिमेंबर द वर्ड पेंटोज सुगर, पेंटोज word. Okay, you have heard this word in this chapter, that is in monosaccharide. That is monosaccharide, 3 carbon sugar triose, 4 carbon sugar tetrose, 5 carbon sugar pentose. So pentose sugar means आपको याद होना चाहिए कि these two are having 5 carbon, and
pentose sugar is monosaccharide or disaccharide or means oligosaccharide or polysaccharide. So these are मोनोसैक्राइड. तो अब मोनोसैक्राइड के नाम में आपके पास क्या क्या आ गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. ये चारों मोनोसैक्राइड हो गए शुगर में. नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस means some basic component which contain the nitrogen, means nitrogen containing base. जैसे अमाइन हो गया, बेस तो NaOH भी हुआ, but NaOH is not nitrogenous base. Nitrogenous base means that which contain the nitrogen and their basic nature is due to the nitrogen, like amine. And phosphate group, phosphate group means PO4 triple minus group. So a nucleotide is made of 3 component. एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, phosphate molecule. So when one molecule of pentose sugar, one molecule of nitrogen base and one molecule of phosphate is combined, then that form is called nucleotide. तब उससे बनता है nucleotide. Now in the formation of nucleotide, pentose sugar can be of any one of these two type. pentose sugar दो टाइप में से कोई एक हो सकता है. वन इज डीऑक्सीराइबोज, अनदर इज राइबोज. नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, pyrimidine एंड प्यूरिन. pyrimidine एंड प्यूरिन. pyrimidine नाइट्रोजिनस बेस जो है दैट इज ऑफ 3, टोटल 5 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. आउट ऑफ दैट 5, 3 आर कॉल्ड pyrimidine नाइट्रोजिनस बेस and 2 are called purine nitrogenous base. pyrimidine nitrogenous base is C2, C2, CTU, C2, C2, CTU. मैंने अपने से शॉर्टकट बनाया है pyrimidine C2. C is for cytosine, T is for thiamine and U is for uracil and purine is AG. ठीक है, AgC2, AgC2, AG adenine and G is for guanine. So total 5 nitrogenous bases are there, AgC2, adenine, guanine, cytosine, thiamine and uracil. Out of these 5, 2 are purine nitrogenous bases, adenine, guanine, and 3 are pyrimidine nitrogenous bases, uracil, thiamine and cytosine, thiamine and uracil. So now another information. Now see, पेंटोज सुगर, जो दो टाइप का पेंटोज सुगर आपको बताया गया है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. सो बोथ ऑफ देम आर हैविंग द 5-5 कार्बन. जैसे आपको बताया गया था ग्लूकोज फ्रक्टोज, glucose fructose both are having the same molecular formula, that is C6H12O6. both of them are having same number of carbon, 6 carbon. ठीक है, but they have the different functional group. So here in pentose sugar, one is ribose, one is deoxyribose. So what is difference in ribose pentose sugar and deoxyribose pentose sugar? आप डायग्राम देख रहे होंगे, everything is same. Just read the word and deoxyribose. Deoxy means it is not having oxygen. So when you will see the second position of these two, then what is the difference between ribose and deoxyribose pentose sugar? Ribose और deoxyribose pentose sugar में क्या difference है? The only and only difference is here that in ribose pentose sugar, oxygen is present at second carbon. So oxygen is present at second carbon in the form of OH. But in deoxy, नाम ही करा deoxy means जिसके पास oxygen. In deoxyribose sugar, oxygen is not present at second carbon. That is only hydrogen. इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसके कारण OH ग्रुप होता है, और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, केवल सेकंड कार्बन पे. अल्फा बीटा का मतलब आपको बता दिया गया है पहले, कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब बता दिया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर 2?
2 is showing that second position is deoxy position, मीन सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है. सो सेम उसी तरह से ड्रॉ करना है. पेंटा जैसे आप स्ट्रक्चर बना रहे थे, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाइए इन विच one oxygen and 4 carbon will be here. फिफ्थ कार्बन विल बी आउटसाइड. पांचवें कार्बन CH2OH रहेंगे. बाकी सब पे HOH 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 लगा दीजिए जैसे आप वहाँ पे बनाते थे, एंड योर स्ट्रक्चर विल बी रेडी. आपका स्ट्रक्चर रेडी होगा. बट रिमेंबर, if at the second position you will write the OH, then that will be ribose. If you will write only H, then that will be deoxyribose. आपको क्या बनाना है वो आप देख लीजिए अपना, कि राइबोज की deoxyribose. And why it is beta? तो आपको बताया गया था कि जब OH ऊपर रहता है अपवर्ड साइड में तब उसको बीटा कहते हैं. जब OH डाउनवर्ड साइड में होता है फर्स्ट कार्बन पे, then that is called अल्फा. तो यहाँ पे बीटा है, ये बीटा हो गया. सो आई थिंक इट इज क्लियर. अभी हम कहाँ थे, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. वी हैव स्टार्टेड द न्यूक्लिक एसिड. पहले न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स. इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन and help in synthesis of protein. Another, nucleic acid is a polymer of nucleotides. So what is the monomer of nucleic acid? That is nucleotides. Nucleotides are means what is the component of nucleotides? That is pentose sugar, nitrogenous base and phosphate molecule. Pentose sugar in nucleotide or in nucleic acid, how many types of pentose sugar are present? And two types of pentose sugar are present, deoxyribose and ribose. These pentose sugars are having how many carbons? 5 carbon sugar. And what is the difference in ribose pentose sugar and deoxyribose pentose sugar? In ribose pentose sugar, second carbon is containing the oxygen in the form of OH, but in deoxyribose the second carbon is not containing the oxygen, only H is there. That's why it is also called 2-deoxyribose. इसको क्या कहते हैं? 2-deoxyribose. deoxyribose नहीं, exact position 2-deoxyribose. Now another, nitrogenous base. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस. देखिए सिंपल सा कह रहा है, वही जो आपको बताया गया. नाइट्रोजिनस बेस आर सिंपल बेसेस, ठीक है, विच आर कंटेनिंग द नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन क्या होते हैं, कंटेन किए रहते हैं. अभी न्यूक्लियोसाइड क्या है ये बाद में बात करेंगे. अभी क्या कर रहे हैं, अभी केवल बता रहे हैं कि नाइट्रोजिनस बेस होते क्या हैं. सो सी 5 नाइट्रोजिनस बेस हैं, एडनिन, गुआनिन, ये ऊपर के प्यूरिन बेसेस हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. In purine you can see double cyclic structure is there. In pyrimidine only single cyclic structure is there. pyrimidine में single cyclic structure है and purine में double cyclic structure है. So double cyclic structure containing the 2 nitrogenous base and single cyclic structure containing the 3 nitrogenous base. You need to draw their structure. This is for competitive examination I am saying, but because द सिलेबस इज रिड्यूस, अभी तक तो ये बोर्ड में कभी आया नहीं है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, बट मे बी इन MCQ द क्वेश्चन विल बी देयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेनिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुआनिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोसिन. तो स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, देखिए साइटोसिन में यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे NH2 है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है. नेक्स्ट, थायमिन में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेथिल है, ठीक है. नेक्स्ट, यूरेसिल में कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल है. सो यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है. इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है. सो आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है. फॉर कॉम्पिटिटिव बोर्ड में अभी तक आया नहीं है, लेकिन मे बी दिस ईयर इज स्पेशल ईयर, सो मे बी इट कैन बी कम इन दैट वे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए गुआनिन का. अभी तक आया नहीं है बोर्ड में. नाउ आफ्टर दिस, ये आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर.
दिस यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द नाइट्रोजनस बेस। इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है क्या होता है, तो इसको नहीं बता रहा है यहाँ पे। नाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट इज ओवर। जब न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, देन हाउ दे आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड हाउ न्यूक्लियोटाइड इज कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कंपोनेंट कैसे कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और कैसे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। जैसे प्रोटीन में आपने देखा था कि एमिनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, देन पॉली, देन प्रोटीन। तो सेम इज हियर। सो सी द टू वर्ड्स, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड वहाँ नहीं बताए थे। टू वर्ड्स आर हियर, वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड अनदर इज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है और फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? सो सी in this, when any one of these 5 nitrogenous base comes and attach at the first carbon of pentose sugar, any of the pentose sugar, राइबोज पेंटोस सुगर हो या डी ऑक्सीराइबोज पेंटोस सुगर हो, इससे मतलब नहीं है। राइबोज पेंटोस सुगर हो चाहे डी ऑक्सीराइबोज पेंटोस सुगर, उससे मतलब नहीं है। पेंटोस सुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन पे, कहीं और नहीं। एनी वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस, कोई एक नाइट्रोजिनस बेस, when any one of the nitrogenous base attach at the first carbon of pentose sugar, चाहे वो राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो। ये स्ट्रक्चर देख के मत सोचिएगा कि यहाँ पे सेकेंड पे ओ एच है तो आप कह देंगे ये राइबोज है तो केवल राइबोज में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो वेरी वेल कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। राइबोज सुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो अगर डीएनए होगा तो पेंटोज सुगर विल बी डीऑक्सीराइबोज, अगर आरएनए होगा तो पेंटोज सुगर विल बी राइबोज। So you will not define here कि that is ribose or deoxyribose. You will just say कि when any one of the nitrogenous base लिखना है, not any of the base. If any of the base you will write, that statement may be wrong. And true false में ये भी statement हो सकता है कि any of the base, any one of the base, any one of the nitrogenous base. तो answer will be any one of the nitrogenous base. When any one of the nitrogenous base, that is A, G, C, T or U, attach at first carbon of pentose sugar, pentose sugar के पहले कार्बन पे आके अटैच हो रहा है, then the formed complex is called nucleoside. तब जो बनता है that is called nucleoside. So यहाँ दो क्वेश्चन बना, एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन कि एट विच कार्बन ऑफ सुगर, pentose sugar, the nitrogenous base comes and attach, then only and only first carbon. Remember this, nitrogenous base can comes and attach at first carbon to form the nucleoside, not any other carbon. Or maybe the question will be there, in nucleoside at which carbon the nitrogenous base is present of pentose sugar, that is at first carbon. Another information, ठीक है, that is nucleoside is, MCQ में दे सकता है, nucleoside is pentose sugar plus base, pentose sugar plus nitrogenous base, pentose sugar plus nitrogenous base plus phosphate molecule, and pentose sugar plus phosphate molecule. So your answer will be there, pentose sugar plus nitrogenous base. अगर नाइट्रोजिनस बेस ऑप्शन नहीं है तभी केवल बेस वर्ड पे जाएंगे। अगर नाइट्रोजिनस बेस ऑप्शन है so you will go with nitrogenous base, not only base. Remember this. Another information, ठीक है, which bond is formed between base, nitrogenous base and first carbon of pentose sugar, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड.
So remember this, capital N glycosidic, because base is what? Nitrogenous base. So it comes and attached with the carbon of pentose sugar with the nitrogen. So it is saying N. एंड ग्लाइकोसिडिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक. सो if only glycosidic word is there, it means that is formed between carbon, ठीक है, of two monosaccharide. But if N glycosidic is there, so it means this bond is formed between the nitrogen of nitrogenous base and carbon of pentose sugar. So now if you want, you can write the definition of nucleoside in this way. अब न्यूक्लियोसाइड का डिफिनीशन आप और कैसे लिख सकते हैं? व्हेन एनी वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस अटैच एट द and glycosidic linkage, then the formed complex is called nucleoside. जो बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. एंड देन आफ्टर यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, गिव द नेम. नेमिंग करते समय बॉन्ड को नाम दे देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड नीचे नोट में लिख देंगे द बॉन्ड by which nitrogenous base attach with the first carbon of pentose sugar is called N-glycosidic bond or N-glycosidic